Hi everyone, thank you for tuning in on Lounge with Fatma. I have yet another special guest who started his music career at a very young age, Emma Jahazir. Welcome, Jahazir. How are you today? How are you, Fatma? I'm good. I'm good. I'm Pretty good. very well. Thank you for joining me. It's an absolute pleasure. I know it's been very busy with you lately, but you took time out and thank you once again. Nahi ji, thank you ki koi baat hi nahi hai. It's a pleasure. And I have been, checking out your channel and plus congratulations on the whole venture. Thank you. Wish you all the success in life. And Thank you. it's good to interact with our, what do you say, figures here in Pakistan. And you should, obviously, for your channel also, it definitely helps in a way that, you promoting our, our talent here from this country throughout the world. So you're doing a great job. Congratulations on that. Thank you so much. Thank you once again. You know, when COVID happened, uh, milna julna, travel karna becomes very limited. And I'm an artist who paints. So, Yeah. and of course, communication is the power. Communication is the key. And this was the best way to reach out. So, COVID ki jab baat aati hai, uh, you know, I took my time in 2020 when all this happened because I needed my time to concentrate on my art. And being an artist who paints, I need my own, I Space. one Yeah. becomes an To express introvert when it comes to exactly. your word. Yeah. What Yeah. about you? Do you feel you became more productive? Do you think you came up with better ideas when it comes to, because you're a music composer, you're a singer. Yeah. See, I count myself similarly to what you do. Basically, you're a creator. So creator needs focus. You can't create if there's a lot of what do you say distraction going on, or mobile phones, or people around you. You need your space. You need to cut off yourself from a lot of what do you say daily usage things. Like phones and all. And an artist creates the best when he's on his own, and that's when all those creativity comes in, when you like shut down. Hmm. So you studio, you understand, your painting studio is also something which is very quiet and shut off from everything. This is my home studio where I'm sitting right now at this moment. So you can see it's a very mellow, low environment, nothing very bright, gaudy, nothing, it's just a soft little space where I come down. This is how I like to work. I don't like very bright atmosphere. This is how I create. So I have a commercial studio, similar, good lighting. So I come up to my this is what I call my laboratory. I come and create things and Create the do mood. experiments. Yeah, Yeah. exactly. So I do all the experiments here, and COVID obviously made it more obvious for everybody. Hmm. Okay, and now everybody has to do the same. Hmm. I think it didn't really bother me because this was my lifestyle. Always had a studio, and obviously a celebrity, a public figure, you can't mingle with a lot of people outside. Also, you need that space, you need that distance. Create the A lot focus of huge also. stuff. Yeah, Concentration focus, huh? Hmm. या नहीं, मगर आप वैसे ही पब्लिक में जाते हैं तो आई नो दैट आई यूज्ड टू हैव गार्ड्स टू सर्कल मी ऑफ एट टाइम्स. तो ऐसे भी ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत चीजों के अंदर कभी लगता है, लाइक पीपल, बिगर स्टार्स लाइक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दे हैव अ टेयर अराउंड देम, Hmm. सो नोबडी कैन इंटरेक्ट. तो वैसे भी कोविड और कह लेंगे, वैसे भी एक स्टार की जिंदगी बड़ी secluded सी होती है, बड़ी आइसोलेटेड सी Hmm. होती है, अपने में होती है, बहुत Hmm. ज्यादा मिलना नहीं होता. तो एक तो I don't know what to say because people have died because of it. It's not True. even True. it's not nothing to be funny about. कि, ऐसा कुछ है, but it's a very serious thing, and I think the whole dynamics of the world have changed after COVID has stepped in. And I think it's a wake up call for everybody, including us. That you should spread love as much as you can. You have a very small time to live, a very बिल्कुल. short span. तो जितना Absolutely. प्यार आप बांट सकते हैं, जितना लोगों से आप हम्बल रह Hmm. सकते हैं, Hmm. बिकॉज मैं अभी कुछ दिनों पहले स्टेटस भी अपना ये आई वाज रीडिंग समवेयर
कि कि एक इंसान की जो जिंदगी है ना वो इतनी सी है कि पल भर में याद बन के रह जाता है, Absolutely. you don't even know कि आज है और कल आप किसी की याद है, it's like people will बिल्कुल remember you. बिल्कुल So, बिल्कुल. छोटी सी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारें, एंड हम्म, म्यूजिक इज समथिंग व्हिच आई एम ब्लेस्ड विद कि मुझे अल्लाह ताला ने ये यू नो म्यूजिक बनाने की, क्रिएट करने की सलाहियत अता की है, which is very spiritual. It's not even you know it's nothing which I can um, इसको मैं खुल के बता भी नहीं सकता. It's something very spiritual कि वो जो थॉट्स हैं, वो जो म्यूजिक बनाने का पूरा अमल है, you have to connect somewhere, you have to go into a trance to do that. So I'm blessed. I'm a very calm person that way. मुझे बहुत सारी बुराइयों से खुदा ने बचा के रखा है म्यूजिक की वजह से. सही बात है. वरना stars usually are into rock and roll and Yeah. You mentioned a few names from the Indian industry, and I believe you have also shared the space virtually and I think physically on stage with some Indian icons. yeah, Let's talk about that. I have shared with a lot of stars, like if you say कि personally, तो फिर मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, even मैं Amitabh and even a lot of stars. But this one incident where Sanjay Dutt called me to India is something, a very huge star in my profile, because nobody else was called besides Strings, the band from Pakistan, and a couple of, I think, two other film stars. So it was an event for Tsunami, and I got a call one day from Sanjay Dutt saying that, he's a huge fan, and the girl, Sanjay Dutt's girlfriend, who is now, I think, her wife, is somebody who made him hear my song. So it has a very special connection with him, Sanjay Dutt, and he loves my song Aapki Yaad, which is very close to me. So we have some very sweet connection going on, and I do speak to him sometimes when things are better, because he's always into that Sanjay Dutt is always Pakistani, Musliman and all that. So हम थोड़ा सा अभी कम करते हैं, but back in those days, so I used to talk to him a lot. After that, who I was very happy to meet was A.R. Rahman, and he's one of the icons who everybody looks up to, and what a gem of a person. मुझे ये अंदाजा हुआ है कि जो ये क्रिएटिविटी वाले लोग होते हैं, ये होते थोड़े से दिमाग के खिसके में होते हैं, अच्छा, in मतलब what थोड़े context? please don't take me as like somebody who's abnormal or something, but आप उनसे थोड़ी देर बात करो ना, आपको लगता है कि they disconnect, they're not there, they're in their world, Yeah. they don't want to ask you कि आप क्या खाया, आपने क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे. So that small conversation with A.R. Rahman was I thought he's somewhere outside, he's not here present, and he was constantly thinking about something कि कुछ, and he was asking me limited questions कि अच्छा ये है, अच्छा वो है, where you from, अच्छा क्या करते हो, क्या किया, all that. मगर not there in the conversation, like अभी हम लोग conversation कर रहे हैं. Yeah. ये एक बड़ा अजीब सा चीज, मैंने बड़े बड़े स्टार्स को देखा है कि जो क्रिएट करते हैं, mostly musicians are a bit on the other side, of the world. क्या डिफरेंस है 90s के इंडस म्यूजिक डेज में, where I grew up listening to that? I mean, phenomenal time. और आज के म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? और बीच में जो एक गैप आया, वो I'm sure you as an artist know very well क्या गैप आया, but myself as a listener also, I know कि एक void आया था जहाँ पे समझ नहीं आ रहा था what is going wrong and what has gone wrong. So क्या था बीच में? What do you find the difference between the two eras, I would say? Like एक कोको कोला आप बात से 1970 में जो बॉटल थी उसका और आज के शेप में बड़ा फर्क है ना, तो मतलब by time things change, even music, ABBA के जमाने का एक रेट्रो म्यूजिक था with all those retro sounds. अब वो चीजें by time they shifted into dance music and club music, and all those grooves have changed, so by time things change, so I stepped in when I was in 2000, when I was in my 20s, early 20s, like 1920. उस वक्त ज़माने में I used to listen to a lot of Junaid Jamshed and Awaz and
Harun and Sajad Ali, you know, and a lot of उस जमाने के जो बिल्कुल you know निकलते हुए बड़े स्टार्स थे, और उनके म्यूजिक में और अब के म्यूजिक में ऑब्वियसली चीजें ऐसा ऐसा चेंज हुई हैं. फिर we stepped in, we came in with another era. उसके अंदर we had this classical भी था, उसमें more serious music, more serious poetry, और you know जिसमें फिर मेरे साथ fusion भी आया आंखों के सागर लेकर, and then मी कार्लसन बैंड popped in, and वो अजीब ही समझने के एक तरीके से ना हर जगह से म्यूजिक अच्छा आना शुरू हो गया था, and नए stars were popping out. क्योंकि probably एक platform भी मिल गया था ना. Indus Music was a platform. Yes, exactly. Yes, Indus Music was a platform because of Mr. Ghazanfar Ali. He always had an eye for an artist, and he always wanted के हमारी मुल्क की industry shine करे, and you know I still call him a kingmaker because you know उन जैसा अभी तक कोई नहीं आया. You know he has made stars you can't even imagine कि हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो गजनफर अली साहब की you know बदौलत हैं, जिन्होंने इतना बड़ा चैलेंज दिया कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हर मुल्क में जहाँ पे आप आर्टिस्ट की मैनेजमेंट, आर्टिस्ट की ग्रूमिंग आप जिसको आप ज्यादा अहमियत देते हो ना, उसमें होता ही कि you're prone to take risks with new faces, you know. True. You have to take risk. यहाँ लोग रिस्क लेने से अब डरते हैं कि यार इसको कोई जानता नहीं है, इसको क्या करना चाहिए, नहीं करो, ऐसा नहीं है, पैसे डूब जाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे. पूरी दुनिया में कोई नया सिंगर या नया एक्टर आता है, नया आता है, उसके ऊपर लोग रिस्क लेते हैं, उसको स्टार बनाने में उसकी हेल्प करते हैं, उसको ग्रूम करते हैं. हमारे मुल्क में आज मैं भी एक एग्जांपल हूँ, तो मैं अपनी खुद की पोटेंशियल पे और अपने खुद की बेसिस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ. मुझे किसी ने नहीं बनाया. You must be knowing my father, you know, he was just the force behind me who forced me to fight with this whole lobby system और सारा कुछ ये जो एंटी चल रहा है ये वो. But nobody, no media, nobody besides Ghazanfar Ali has helped me become what I am today. So ये तो होता है कि यार you know you got to understand कि कुछ मुल्कों में कुछ निजाम उल्टा सीधा है जिसको हमें फिक्स करने की जरूरत है कि यार यहाँ आर्टिस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, आर्टिस्ट ग्रूमिंग होनी चाहिए, एक सेलिब्रिटी की एक पोर्टल होनी चाहिए कि जहाँ पे आप सब लोग इकट्ठा हो, कोई अगर राइट्स का मसला हो, कोई चीजों का मसला हो, तो वो आप डिस्कस कर सके. अभी एवरीथिंग इन पाकिस्तान इज हेयरवायर, chaos. जो कुछ भी कोई भी कर रहा है वो अपनी बदौलत कर रहा है. कोई है तो कोई आर्टिस्ट मर जाता है तो मर जाए, कोई आर्टिस्ट गा रहा है तो गाए, नहीं गाना तो नहीं गाए, कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपनी बदौलत कर रहे हैं. तो this needs to be taken seriously because हमारे मुल्क का बहुत बड़ा chunk of stars या chunk of what he says beautiful singers are going to waste. You know हमारी generation जो है वो एक तरीके से हमारी के बाद आने वाली generation ज़ाया हो गई है. वो इस politics की नजर हो गई है, वो इस system की नजर हो गई है कि जहाँ पे alternate में चले गए हैं ना to survive. Yeah, exactly. कि जहाँ पे ना उनको कोई एक्सेस नहीं मिलती. अब दे के अब कोई कोक स्टूडियो या पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में या फिर वेलो में हर कोई अपीयर नहीं हो सकता जब तक उसको कोई जानता नहीं है. यू नो जब तक कोई इसको अभी किसी ने स्टेटस लिख दिया कि प्लीज लेट मी नो हु आर द रैपिस्ट इन पाकिस्तान, तो बेचारे जिनका फेसबुक है वही या जो जिनको कोई जानता है वही बता दिया. बाकी कहाँ जाएंगे जो हमारी 22 करोड़ की आबादी में और भी तो होंगे ना जो घर से निकलते नहीं है डर के मारे कि हमारी इंडस्ट्री इतनी खराब है और अम्मी अब्बू ने बताया हुआ है कि भाई आप नहीं जाओ किसी से मिलने और ऐसे नहीं करो. और वह पीपल आर स्केयर्ड ऑफ दिस सो कॉल्ड इंडस्ट्री. हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है लोगों ने इसको बड़ा अजीब सा बना दिया. बिकॉज हाँ वेरी ट्रू के पीपल आर वंडरेबल बिकॉज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि यू नो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रही है इंडस्ट्री, कौन सी चीजें लाइमलाइट ज्यादा होती हैं, लाइक वो आइटम नंबर्स और इस टाइप की. तो घर से लड़कियां इस तरह नहीं निकलती क्योंकि इनसिक्योर महसूस करती हैं कि यू नो डायरेक्टर्स आर इनटू. बट आई टेल देम कि नहीं यार, थिंग्स हैव चेंज्ड टाइम बाय टाइम. चीजें अभी चेंज हो गई. लॉट ऑफ what do you say learned people have stepped in. Lot of boys and girls from good families backgrounds have stepped in. Movies are coming up to the mark now. अब वो जमाना नहीं रहा कि आप समझो कि यार पता नहीं आपके साथ क्या होगा अगर आप अब अच्छे घरों की लड़कियां भी आ रही हैं ड्रामों के अंदर भी और इसके अंदर भी. तो थिंग्स आर चेंजिंग. ये सवाल जो जो सवाल था ना कि उस वक्त से और इस वक्त में क्या फर्क है, तो यही है कि अब मुसलसल हम भी आई एम कॉन्स्टेंटली बैटलिंग विद दिस होल थिंग कि
I have to bring in some platform. Stop criticizing people. Stop saying this. Do it on your own. खुद ही करो. अब वो वक्त आ गया कि यार अब मैं बोल के नहीं कि यार ये तो पाकिस्तान में तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है, तो ये ऐसा, भाई खुद करो. Stop criticizing people. खुद ही करो भाई. जो है, what my resources are, and you'll see soon कि I'm coming up with a huge platform for music, and which I'll be starting. Looking forward. और हो सकता है हमें एक और ऐसा सेशन करना पड़े to talk about that platform. Jahazib, speaking of which, 2018, I believe, you did a small gig. It wasn't small, it was really big for me, but you appeared on stage as a wild card entry. Let's talk about it. Yeah, this thing. Yeah. Let's talk about it. That's been a good venture. You know, like hota hai na ki be proud of the ventures you do in life, and this is one of those. You know, I'm very proud of it. Yeah. First of all, Bilal Masood, Faisal Kapadia, cannot thank them enough to have that trust, because you know, किसी अपनी जाती personal melody को किसी और को hand over कर देना कि यार ये लो कबाड़ा कर दो उसका, you know, जाके market जाओ उसको बुरा गाओ, तो बहुत मुश्किल काम है to trust somebody, to trust a singer. So I definitely thanks Faisal and Bilal for trusting and having that faith in me to go on and do all that. Plus Faisal and Bilal are those people कि हमारी इंडस्ट्री में इनमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, जो हम कहते हैं ना कि they so down to earth people, they so sweet humble people कि they know कि यार एक आर्टिस्ट अगर अच्छा गाता है तो उसको कितनी इज्जत देनी चाहिए, कितना उसको टेंशन देनी चाहिए, उसको क्या क्या कुछ कराना चाहिए. तो वो सारी चीजें जब भी आप देखिए कोक स्टूडियो के 3-4 सीजन जो फैसल बिलाल ने प्रोड्यूस किए, उस मार्क को अभी तक कोई निकाल ही नहीं सका आगे. मैं I'm saying this, ये रिकॉर्ड का हिस्सा हो गई है जो बात कर रहा हूं. I'm not afraid to say that कि मुझे आगे लोग लेते हैं, कोक में नहीं लेते, बट कोक स्टूडियो का जो मार्क रख दिया है बिलाल फैसल ने, वो अभी तक जो इसके बाद के सीजन आए वो कर ही नहीं पाए उसको. कॉज एक तो उनकी नॉलेज, बात वही होती है ना, when you're creative it comes naturally to you. जब आप कॉपी कर रहे होते हैं तो आप फंस जाते हैं. you have to have that sense of music to let people collaborate and let people do new things, that space to do, you know. जब फैसल बिलाल को पर्सनली मैं जानता हूँ कि throughout this recording of Allahu Akbar and खाकी बंदा which I did with Umair Jaswal, nobody interfered. मतलब जो हम कर रहे थे अगर वो बुरा था तो वो मुझे भी बुरा लग रहा था, वो फैसल को भी बुरा लग रहा था, वो बिलाल को भी बुरा लग रहा था, वो इसाक को भी बुरा लग रहा था, वो शुजा को भी बुरा लग रहा था. तो वो एक म्यूचुअली अगर कोई खराबी थी तो थी, बट कहीं इंटरफेयर नहीं, ऐसे नहीं करो, वैसे लाइन नहीं करो, ऐसे नहीं. उनको ट्रस्ट था कि जब ये टीम इकट्ठा होगी और ये बंच आर्टिस्ट इकट्ठा होंगे तो दिल डू मैजिक, यू नो. तो उसमें इंटरफेयर थी, और यही हुआ कि यही उसके साथ भी हुआ जो बैटल ऑफ द बैंड्स था, क्लैश ऑफ द बैंड्स, कि उन्होंने मुझे दूर दिया एंड उन्होंने कहा कि भाई अच्छा बस अब शुरू हो जाओ, तुम्हें पता है कहां से कहां शुरू होना है. And that was about it, and I think that I did some justice to it because it sounded very nice into the day, and I mean I get appreciation from all the world because of the song, and definitely it's a feather in my cap for sure. Absolutely. You started music at a very young age. When was the first time? When was वो जो एक moment होता है ना, that you decided कि ये मेरा career है, this is it? I think I got the hold of it after एक बार कहो, because before that I was a very क्या कहते हैं, spoiled brat sort of a kid, you know. मतलब टिकना नहीं, बैठना नहीं, करना नहीं, अम्मा अब्बा जो बोले उसके बिल्कुल ऑपोजिट करना है, चीजों में ध्यान नहीं लगाना, मार ज्यादा खानी, शरारतें ज्यादा करनी. आई थिंक मुझे जब एक बार का रिलीज हुआ पहला गाना, उसके बाद जब मैंने बाहर स्टारडम देखी ना, तो मैंने कहा कि यार ये तो अजीब ही कुछ हो गया ना, यू नो. मतलब गाड़ी से उतरना, किसी इलाके में जाना, किसी से बात करना, मिलना इतना मुश्किल, और इतने लोग चाहने वाले, इतना प्यार करने वाले. ओवरनाइट बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी के अंदर चेंज हुई हैं. तो वो जो था ना, that was a striking point for me कि oh God, अच्छा, this is how big it can get, you know. And then I got serious. वरना वो बचपन में तो बचपना ही था ना मेरा, कि मतलब बाबा ने बोला ये गाना है, मुझे अंदर से बुरा लग रहा है, मैं फिर भी उनकी जबरदस्ती के लिए मैं गा के सुना रहा हूँ. बहुत सारी महफिलों में मैं ऐसे ही बस जाके पूरी रात बैठ के गाता था, और बस गाता रहता था मैं. उसके अंदर कोई
वही नहीं होता था जब तक लोग घर नहीं चले जाते थे, मैं करता रहता था। तो ये था कि उस जमाने में मगर ये मेरे अब्बा का पैशन था, उनकी ड्राइव थी कि that's what he wanted from me, and that was a confidence builder कह लें या confident booster कह लें, कि how to deal with public and how to sit and sing with them, along with them, और घबराना नहीं और ये नहीं और वो नहीं, और तो वो सब part of my building up था. And you had a very And vigorous training even as a young kid. You had a yeah, very vigorous training. Kabhi aisa point aaya, did it ever occur to you that you want to explore other fields, other professions, alternate professions? yeah, I did wanted to do things apart from music, but then again, my father, the sort of person he was, from the time he wakes up till the time he sleeps, उनकी एक routine थी जिसके अंदर there are a lot of people who used to meet up, socializing. कुछ नहीं तो घर पे चाय की महफिल हो रही, तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे बुला लिया कि भाई आ जाओ बैठिए और उनको चार लाइनें उसकी सुनाओ. तो I was like deliberately put into this कि मैं डेली के रूटीन में उनके साथ कहीं ना कहीं एडजस्टेड था कि अगर उनने कोई मेहमान आना है तब भी मुझे मिलवाना है, कहीं बाहर जाना है तब भी मुझे साथ लेके जाना है. तो और म्यूजिक ही म्यूजिक था हर जगह. तो अगर जा रहे हैं तो किसी उस्ताद से मिलने जा रहे हैं, my baba was from merchant navy, तो obviously उनका एक socializing का एक setup different था. People from all walks of life were his friends, plus वो एक community के अंदर भी हम जहाँ इस इलाके में रहते थे, it's very loud and very मिलने वाले मिलनसार आदमी, और हर चीज एक्सप्रेसिव भी बहुत थे. तो मतलब अम्मी भी हमारी ऐसी थी, तो मतलब वो दोनों की कॉम्बिनेशन यही था कि बस पब्लिक लोगों के अंदर रोज रात को अचानक 50 लोग मेरे घर में आ जाए, पता ही नहीं चले कहाँ से आ गए 50 लोग, किसने बुलाया, दावत थी नहीं. हर रोज का, मैं फातिमा सीरियसली बता रहा हूँ, ये रोज का मेरा 8-9 साल तो मैंने ये देखा है कि कोई ना कोई दिन तो कुछ ना कुछ घर में हो रहा था, वो समथिंग हैपनिंग इन माय हाउस. तो वो बस उसी में मैंने जब होस्ट भी संभाला तो मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द सारे बड़े बड़े उस्ताद हैं, गुलाम अली, मेहंदी हसन खान साहब, और ये सारे कुछ हमने घर में ही उनको देखा. तो वो विगरस ट्रेनिंग की जहां तक बात करें, आई थिंक वो ट्रेनिंग नहीं कहेंगे, वो एक पार्ट ऑफ माय लाइफ था कि जिसमें मैं सुन भी रहा था और खुद भी गाने की कुछ कोशिश कर रहा था, फिर मैं उससे भागता भी था, फिर मुझे बुलाया था. वन थिंग माय फादर मेड श्योर कि पढ़ाई नहीं सफर करे. वो जब होता था ना एग्जाम्स एंड पेपर्स एंड व्हाटएवर फाइनल टर्म्स, और उस वक्त म्यूजिक वाज लॉक्ड अप इन अ रूम. उसके वो फिर 4 महीने की पढ़ाई हो, 10 महीने की पढ़ाई हो, तो इट हैज टू बी डन. उसमें कोई चीज नहीं इंटरैक्ट करती थी. तो a proper grooming comes from within, मतलब घर के अंदर से ही शुरू होती है. and I think they did a good job कि मान लो आज मैं बैठ के तुम्हें इंटरव्यू भी दे रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, and I'm talking about my career which I have made, so it's a proud feeling. Any life changing moment, good or bad, कि जिंदगी बदल गई है उसमें? I think जिंदगी मैं इस तरह कह सकता हूँ कि देखो, मैंने दुनिया घूमी है. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक म्यूजिशियन का या एक आर्टिस्ट का, क्रिएटर का पर्सपेक्टिव दुनिया देखने का बड़ा डिफरेंट होता है. आप देखते हैं ग्रीन रंग का पत्ता, मैं देखता हूँ लाइफ, मैं देखता हूँ लाइफ, मैं देखता हूँ कलर, मैं देखता हूँ बहुत सारी चीजें. आप देखते हैं बादल, मैं देखता हूँ उसका मैग्नीट्यूड, मैं कुछ और देखता हूँ बादलों के उस पार. तो हम लोगों का थोड़ा पर्सपेक्टिव एक तो देखने का होता है. तो जिंदगी क्या है, कैसी है, क्यों है, ये सवाल जो बचपन में या बहुत जवानी के उन दिनों में आते हैं कि दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्यों है, व्हाई इज इट, वो सारे सवाल मैं अपने आप से कर चुका था, और उनका मुझे इक्वल टू जवाब मिलता रहता था. लाइक आई वाज सराउंडेड बाय वेरी सक्सेसफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स जिन्होंने दुनिया देखी है, लाइक माय फादर, लाइक माय उस्ताद, लाइक तो मुझे ट्रेनिंग वहां से मिलती रहती थी कि दिस इज व्हाट लाइफ इज, ऐसे डील करना है. लाइफ चेंजिंग I wouldn't say, but yeah, a lot of things unlocked. कि मतलब मेरी वालदा के इंतकाल के बाद I was thinking everybody was mortal और कुछ नहीं होने वाला, सारे जिंदगी भर ही रहेंगे हमारे इर्द. Those little things are which bothers you कि यार ये तो बड़ी छोटा सा स्पैन है, क्या सीन है, ये भी जिन्होंने भी चले जाना उधर. तो उसके बाद फिर जिंदगी जो है ना, वो आप और थोड़ी सीरियसली गुजारना शुरू करते हो, और मजीद सीरियस होना शुरू हो जाती है. आप अपने डिसीजन में सीरियस हो जाते हो, आप कॉमेडी थोड़ी कम करते हो, थोड़ा सा जरा बैलेंस रखने की कोशिश करते हो. ठहराव आ जाता है.
ठहराव आ जाता है। यस एग्जैक्टली। और आई थिंक वही मेरी लाइफ चेंजिंग है, बिकॉज मैं एक बहुत ही स्पॉइल्ड किस्म का बच्चा और एक जवान लड़का हो सकता था क्या। I had the max opportunities of spoiling myself. मतलब मेरे पास सब कुछ था जिंदगी में। You can just imagine वो सब चीजें मेरी लाइफ में इर्द गिर्द थी। I would have easily done anything to myself and would have just convert myself somewhere. But वही कि लाइफ चेंजिंग इसीलिए कहूँगा कि ये this process has been life changing and constantly every day when I wake up something new to discover and new to know कि अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी है। It's daily something, you know, progress हो रही है कहीं ना कहीं। फिर आप अपने आप you gotta love yourself to love others। ये तो बात कंफर्म होगी ना कि आप पहले अपने आप से प्यार करें, अपने आप को आप समझे क्या है क्या है, और वो फिर बैलेंस लाइफ में लेकर चलना कि बड़ी सारी चीजें मैं देखता हूँ। लोगों को तो मुझे हंसी भी आती है कि यार इनको अब कौन समझाए, इनको क्या बोले, मतलब चलो जिसकी अपनी जिंदगी अपनी अपनी तरीके से जिए। बट हम समझते हैं कि यार हम बहुत करीब हैं उन सब चीजों की सच्चाई की हकीकत के कि जो चीज खुदा ने भी कही है, जो चीज कुरान में भी है, जो चीज यहाँ भी है। बहुत चीजें बैलेंस रख के चलते हैं यार, क्योंकि आपको पता है ये बड़ी वनरेबल सी फील्ड है शो बिजनेस की। इसके अंदर आप हर चीज आपके इर्द गिर्द होती है और आप उसमें अपने आप को कंट्रोल करना, नफ्स पे काबू रखना, चीजों को बैलेंस रख के There are अपने so घर many दाने। people who are looking up to you, who are looking Yeah. up to many artists like you know, and they take you as a role model. So you need to Yeah. set the right examples. बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे फॉलोअर्स लाइक अगर मुझे कोई आइडियलाइज करता है तो वो मेरी तरह दिखना भी चाहता है, मेरी तरह बात भी करना चाहता है, मेरी तरह ओढ़ना भी चाहता है, हर चीज। तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप एक 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 chunk or a line of people, if they following you and if you convert them into good people, so your cause of coming to this world is served, you know, you're done। बिल्कुल। क्या चंद लोगों को अगर आप अच्छी अच्छी नसीहत तरबियत कर दो तो आई थिंक यू डन, यू गुड टू गो मतलब। और फिर वही चीज है आपकी कि मैं अपने आप को जानता हूँ कि मुझे अगर पड़ोसी है तो मुझे उसका भी एहसास है। तो अगर तुम हो तो तुम्हारी नाक बंद है तो मैं तुमसे पूछूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दवाई ले लो, ये कर लो। एहसास है, ख्याल नहीं, एहसास है। हर किसी का, मेरे घर में 5-6 सर्वेंट्स काम करते हैं, सबका अलग अलग, तुम्हारे घर में क्या तकलीफ, तुम्हारे घर में क्या, उसको क्या हुआ, इसको। तो आई थिंक मुझे लगता है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे काफी सलाहियतें अच्छी दी हैं कि मैं I'm proud of it कि यार इस तरह मुझे बैलेंस दिया हुआ जिंदगी। I understand all the things। You know, there are many artists, singers, musicians. उनका म्यूजिक सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होता है, the compositions are beautiful, but sometimes you know lyrics इतनी meaningful नहीं होती हैं। But when it comes to your compositions, the songs that you choose to sing, it's also the beautiful compositions, but also very meaningful lyrics. I know I'm not the only one who observed that, but it is true. बहुत शायरी होती है, बहुत डेप्थ होती है। Is it because you choose it? And I've also noticed that I haven't noticed, but it's an observation कि लोगों को क्या ज्यादा समझ में आता है, कॉम्पोजिशन समझ में आती है कि लिरिक्स ज्यादा समझ में आती हैं, और एसेंस क्या है म्यूजिक का, अच्छे म्यूजिक का क्या है, what is the true core ingredient? This is nothing nothing which you won't understand। It's very simple to make you understand कि देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ कि क्या हाल है, कैसी हो, क्या हो रहा है, एक आपकी तहजीब का एक हिस्सा है कि जो कि आपको बचपन से सिखाया गया है। और वो सिखाया क्या कि आपको बहुत मोटी मोटी वजूहात जिंदगी की आपको किताबों के अंदर दी गई जो आपने उस एरा में पढ़ी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कोई आप अलिफ बे का कायदा पढ़ते हो, स्टार्ट करते हो, या फॉर एग्जाम्पल आप ABCD सीखते हो, तो उसका बेसिक होना बहुत जरूरी है, बेसिक की नो-हाउ जरूरी है कि व्हाट अल्फाबेट A स्टैंड्स फॉर, B क्या है, ठीक है। उनकी फिर आपको मेल जोल पता होना चाहिए कि BAT क्या बनता है और RT, वो सारी आपकी चीजें कोर आपकी बेसिक ट्रेनिंग है जिंदगी में। आप अगर आज से 50 साल पहले ले जाए तो हमारे माँ बाप की जो ट्रेनिंग थी वो और ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उनके यहाँ वो फिर होता था कि उठने बैठने से लेकर के टांग यूं रखनी है या टांग यूं रखनी है या हाथ यूं रख के बैठना है। अदब अदब
हाँ. और वही अदब का हम वो एक लेगेसी है जो अदब की लेके चल रहे हैं। इसी तरह शायरी है। अब मैं बोलूं कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार, चले ये अपना मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, या कूबकू फैल गई, या व्हाटएवर, ये जो है ये एक जो जो क्या कहते हैं एक सलीस जो एक कहते हैं, एक बहुत ही उर्दू का वो पॉइंट कि जिस पे आपको लगता है कि यार इसमें से बहुत सारे लफ्ज तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे, या इसमें तो बहुत सी चीजें, तो ये आपकी बचपन की ट्रेनिंग या ग्रूमिंग में से शामिल है कि आपके अम्मी अब्बू ने आपको ये देना चाहिए था कि उर्दू अगर उर्दू को लेकर आगे चलना है तो उर्दू की कुछ कायदे वायदे किताबें कुछ चीजें आपको पढ़ानी चाहिए थी। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, बट एंड ऑफ द डे मैं मीर तकी मीर पढ़ रहा हूँ। तो मैं अपने अब्बा को ये बोलता था कि आपने क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, मुझे मीर तकी मीर या अहमद फराज या गालिब को पढ़ना था जिंदगी में, तो मुझे फिर ये क्यों सब चीजें, क्योंकि उनकी बातें तो मुझे आधे से ज्यादा समझ में ही नहीं आ रही कि क्या कह रही है। तो फिर मेरे वालिद ने मुझे बोला कि भाई देखो ये बैलेंस रखना जिंदगी में जरूरी है कि इंग्लिश एक वो लैंग्वेज है, या तुम्हें ए लेवल्स और ओ लेवल्स ये सारी चीजें करना इसलिए जरूरी कि वो तुम्हारी जिंदगी में आगे फ्यूचर में काम आएंगी टू गेट जॉब्स। अगर ये चीज नहीं चली तो वो तुम्हारी बट जहां तक उर्दू की बात है, उन्होंने उसका भी बैलेंस रखा बाय गिविंग मी दोस कंपल्सरी बुक्स ऑन उर्दू एंड टीचिंग देम। तो यही प्रोसेस है। अगर मैं अबे यार तू कैसी है क्या कर रही है, तो ये तो स्लैंग में तो अब जमाना बेसिकली ये आ गया, आप क्योंकि उनको करेक्ट नहीं कर रहे हो ना, तो वही कि आप कैसे हैं, कैसे हाल है, क्या हो क्या, अबे कैसा है तू, क्या कर रहा है बे, और सब कुछ लग गया, यार तू मेरा इधर बैठ गया, चलते हैं तो क्या, वो स्लैंग्स आ गई। और वो लोगों को क्योंकि वो हमने उसको करेक्ट ही नहीं किया तो वो खराब होता जा रहा है बाय टाइम। पहले एक औरत का, अगर आप पुरानी मूवीज में देखें तो एक औरत का सेंसुअलिटी भी दिखाने का एक तरीका डिफरेंट होता था। प्यार मोहब्बत को एक बयान करने का, उनको डिस्क्राइब करने का भी एक तरीका डिफरेंट होता था। अब तो कुछ भी नहीं रहा है ना, अब तो आप कुछ भी चीज कहीं से भी आप डाउनलोड करो, ऑफलोड करो, देखते रहो दुनिया में। तो ये जमाना बाय टाइम करेक्ट होने के खराब हो रहा है। और ये आप लोग का एक काम है, एक जिम्मेदारी कि अपनी औलादों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को करेक्ट करें कि भाई यार या तो ये आप इनका हिस्सा बन जाए सोसाइटी का, ये आप तो ये सवालात ना करें कि यार क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वो एग्जैक्टली कि ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे यहाँ करेक्शन ही नहीं हो रही, पढ़ाई में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, पेपर्स ऐसे ही पास हो जाते हैं, फला भी ऐसी हो जाता है, सब कुछ ऐसी हो जाता है, तो बिगड़ता जा रहा है जमाना। तो इसी तरह हमारी शायरी भी खराब हो रही है। मेरी शायरी क्योंकि जमाने की जहाँ पे बड़ा मजबूत ऑथेंटिक शायरी होती थी कि आपकी याद एक बार कहो तो मेरी हो, कहो एक दिन, वो बड़ी वेटेड शायरी होती थी। और वो इसके लिए आजकल भाई आप सिलसिला के गाने सुन रहे हैं या आप सुहेल राना के नगमे सुन रहे, तो वो ता कयामत तक रहेंगे, आपके बच्चे भी उनको रजिस्टर कर रहे होंगे, बिकॉज वो सीरियस वेटेड और वो सारा सब्सटेंस उनमें था कि जो मयार को रखती है। अब मयार चला गया ना, लोग पीपल वांट टू कम टुवर्ड्स मयार नाउ। True. We are going back to the origin of Urdu. क्योंकि अच्छा लगता है हर चीज में। आप फैशन में भी आप पीछे की तरफ आ रहे हो, आप फैशन आगे की तरफ क्यों, आगे की तरफ कपड़े उतर रहे हैं ना। पहले वाले फैशन में कपड़े पहनते थे लोग ना, फैशन होता था कि मतलब अच्छे, हाँ अच्छे कॉलर्स, बड़े चश्मे, बेल बॉटम्स, ये वो। अब आप देखो कि अब फैशन के ना वापस वो ट्रेंड्स आ रहे हैं वापस। बड़े चश्मों का ट्रेंड हो गया, कॉलर्स का प्रिंट आउट प्रिंट्स का। मूवीज भी आजकल आप देखो तो आपको बूगी नाइट से लेकर तो फला नाइट से लेकर हर मूवी आपको कहीं ना कहीं लगती है इंस्पायर्ड बाय समबडी फ्रॉम 1960s या 70s या 50s की, तो वो जानते हैं कि यही हमारी बेस है, हमने इधर ही के इर्द गिर्द रहना है। क्योंकि वो जो आप चरवा बेच रहे हो ना मार्केट में आइटम नंबर कह के, वो नहीं चलने वाला कुछ दिनों। वो सिर्फ वो आपको व्यूज दे देगा, बट वो आपको इज्जत एहतराम और वो रुतबा नहीं देगा वो। That's correct. अच्छा, हमने लाइफ चेंजिंग मोमेंट की तो बात कर ली है, कोई मेमोरेबल मोमेंट? मेमोरीज यार, ये स्टूडेंट्स का बड़ा मेमोरीज का चक्कर है, ये भी बड़ी यादगार मोमेंट है। और आई थिंक मेरे बचपन में ज्यादातर यादगार मोमेंट्स थे, बिकॉज मैं उस वक्त होश संभाल रहा था, बहुत सारी चीजें मेरे लिए सब वाओ सरप्राइज थी। तो आई लिव्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर 8 years। मतलब वो मेरा जिंदगी से लगता है कि मैं कभी था ही नहीं उस हिस्से में, कि जस्ट डिलीटेड। मतलब मैं रिकॉल करता हूँ कि यार मैंने 8 साल स्कूलिंग की है वहां से, और मैंने बकायदा वहां से अपनी जवानी के दिन शुरू किए हैं, दोस्त यार और ये सारी चीजें मैंने उस जमाने में
तो मेमोरीज मेरी ज्यादातर साउथ अफ्रीका से ज्यादा रिलेटेड है, जिनको मैं रिकॉल करता हूँ कि मेरे कॉलेज में, वो स्कूल में मेरे एक दोस्त यार, या गुड मोमेंट्स, हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या किया. म्यूजिक रिलेटेड मोमेंट्स, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स टू कम. ए आर रहमान इज वन ऑफ द मोमेंट, बट आई थिंक मेरे अभी जिंदगी में बहुत कुछ, इनके साथ कोलैबोरेशंस, इनके साथ चीजें करना, तो देयर आर स्टिल लॉट ऑफ मोमेंट्स टू कम, आई थिंक. Inshallah. You know, your fans and your followers don't see you as much, you know, as we generally see other artists and singers. Iski Like, I'm very bored of the television. I'm very bored of the television now. It's very boring for me. वही repeated सवालात, वही बचपन से, शादी क्यों नहीं की, बाल क्यों लंबे हैं, ये क्यों नहीं करते, खाने में क्या खाते हैं. मतलब आप एक आर्टिस्ट से बात सवाल करिए तो आप रिसर्च करके आओ भाई, उसके म्यूजिक रिलेटेड बात करो, आप उससे इंडस्ट्री की बात करो, आप आगे फ्यूचर की बात करो, कोई कंस्ट्रक्टिव बातें हो. आप जाते हो, आप उसमें एक आर्टिस्ट बड़े से बड़ा स्टार हो, वो वहां पे गुब्बारे बैठ के फाड़ रहा होता है, यू नो, हाँ, या मुंह पे आटा लगा रहा होता है, वो जीप जोकर बना होता है, वो पब्लिक की व्यूअरशिप बढ़ रही है, वहां उसका दिया पाचा निकला हुआ, उसकी इज्जत. So that is intentional. That was my question. You purposely not. हर कोई किसी टीवी प्रोग्राम, यार वो आपसे थोड़े टेढ़े सवालात करेगा तो मजे के, जरा यू नो, थोड़ा सा मसाला जरूर रखना उसके अंदर, मसाला. और मसाले में उस आर्टिस्ट का बेड़ा गर्क हो रहा होता है उस मसाले के चक्कर. तो मैं मसाले से बचना चाह रहा हूँ, वैसे भी मसाला डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है. I want to be a serious, I want to be known as a serious person because I know I'm a joker inside. मैं घर का एक कॉमेडियन हूँ, but I don't want to portray that side to the world, you know, because हजम नहीं कर सकेगी वो. It's not nothing for me to show, you know. ये मेरे अंदर है. You know, Jahazib, on a closing note, I'm going to ask you something. Would you sing for us any of your favorite compositions? Yeah, I would definitely. जब सभी कर ही लिया है तो गाना ही रह गया, वही सुना देता. Yeah, I'll sing a couple of lines from Kaho then, I guess. Please do. Something. सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं. कहो एक दिन, कहो एक दिन. Wow, thank you. Thank you Pleasure. so much. This was Thank you. an absolute pleasure. And मुझे लगता है बातें खत्म नहीं हुई हैं. You know, Obviously. that's how I said it. And I wish you all the best. You know, I wish you all the best. All that you're planning. You know, your new platform that you're working on, and you know, you have a wonderful, wonderful. You best of luck again. In this interview is very, very nice. बहुत ही casual भी था, yet info भी थी इसमें, बहुत सारी चीजें थी, तो very well done. And I would definitely want to continue once again. जब भी कुछ होता है, and all the best to you and your people at home, family members. सबको मेरा regards and salam. Take care of yourself. Take care. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.